Good morning, students. Today our topic of discussion is price output determination under very short period. So, very short period is also known as market period. And what is market period? Market period is a time period where with the changing demand condition we cannot change the supply. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई सा भी वेंडर सामान लेके जब आता है, ठीक है, तो अचानक से अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो इंस्टेंटली वी कैन नॉट चेंज द सप्लाई. सो बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आवर सप्लाई रिमेन्स फिक्स्ड. ठीक है, तो कंसिडर ए पर्सन एक्स, वो मार्केट में 50 kg सप्लाई लेके आया है कोई सा भी एक वेजिटेबल का. तो अचानक से कोई और कस्टमर आके उससे अगर मांगे कि मुझे 70 kg चाहिए, तो वो इंस्टेंटली 20 kg का सप्लाई इंक्रीज कर सकता है क्या? उस टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो स्टॉक लेके आया है मार्केट में that will remain fixed. So what is very short period? Very short period is also known as market period, where with the changing demand condition a supplier cannot change the supply. So under very short period or market period there are two different types of commodities. There are two different types of commodities. One is perishable and the other one is durable. तो दो तरीके का commodity होता है मार्केट पीरियड में. One is perishable commodities and the other one is durable commodities. Now what is perishable commodities? Perishable commodities means that particular commodity which easily gets destroyed. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश. ठीक है, अब फिश का अगर एग्जाम्पल लिया तो कोई एक सेलर जो फिश बेच रहा है मार्केट में, वो जब फिश लेके आएगा, फिश को वो ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख पाएगा. तो कुछ भी डिमांड हो वो उसको बेचना पड़ेगा. वो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन रख सकता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा. ठीक है, मान लो, ठीक है, फिश का एग्जाम्पल रहने दो, पनीर का एग्जाम्पल लेता है. तो पनीर दुकान में वो कितना दिन तक स्टॉक करके रख सकता है? नहीं रख सकता ना ज़्यादा दिन तक. तो 1 या 2 दिन मैक्सिमम, अगर अच्छा फ्रिज हो तो 1 दिन, उसके बाद वो खट्टा होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वो पेरिशेबल हुआ, इजीली जो डिस्ट्रॉय हो जाता है. दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इज नोन एज पेरिशेबल कमोडिटी. नाउ सपोज ड्यूरेबल कमोडिटी. ड्यूरेबल कमोडिटी फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. तो पोटैटो जो है वो 1-2 दिन में तो ख़राब नहीं होता ना, लेकिन ज़्यादा दिन तक भी तुम लोग स्टोर करके नहीं रख पाओगे. बीइंग ए नॉर्मल प्रोड्यूसर, पोटैटो को हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन कंपेयर टू पेरिशेबल कमोडिटीज़ थोड़ा ज़्यादा दिन तक हम लोग ड्यूरेबल कमोडिटीज़ को स्टोर कर सकते हैं. सो हम लोगों को क्या मिला कि वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड दे हैव two different types of commodities. One is perishable and the other one is durable. तो perishable जो है वो easily destroy हो जाता है, जो durable है वो थोड़ा दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं. Compared to paneer, we can store potato for certain time period, but after that it will get destroyed. Okay, now as there are two different types of commodities, likewise we have two different types of diagrams, and we can show how price and output are determined under perishable commodities and under durable commodities in very short time period. So first let us explain how price and output is determined under perishable. So perishable is that time period where we cannot store the commodities for a long period. So whatever our supply is, that supply remains fixed, and that is why the supply curve of the product is a straight line. So this is the supply curve. So once this particular supply is fixed, जैसे मैंने OQ amount, मान लो कि OQ amount is that 50 kg. So 50 kg हम लोग मार्केट में लेके आ गए, which is shown by OQ amount of output. So this is your supply. Your supply will remain fixed. इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते मार्केट पीरियड में, तो वो फिक्स रहेगा. ठीक है, नाउ
we know that the demand curve is always downward sloping, and this side we are measuring price. So price and quantity is having negative relationship. That is why the demand curve is downward sloping. So initially suppose the demand curve is DD and the supply curve is S. ठीक है, so demand and supply is intersecting at point E, which is our equilibrium point, and equilibrium price is set as OP. ठीक है, now if the demand of the product increases from DD to suppose D1, demand has increased from DD to D1. So when your demand increases, being a supplier of पनीर, यू कैन नॉट चेंज दिस क्वांटिटी. अचानक से कोई आके बोले कि तुमको 70 kg चाहिए, तुम इंस्टेंटली 20 kg प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे. अगर तुम मार्केट में 50 kg लेके आए हो, दैट 50 kg विल रिमेन फिक्स एंड यू कैन नॉट चेंज द सप्लाई बाय मोर 20 kgs. ओके, so if demand of the product increases, we cannot change the supply, so supply curve is remaining fixed. If your demand increases, then this demand curve will shift towards right, and the new demand curve is intersecting the original supply curve at point suppose E1, where equilibrium price is P1. Now if the demand of the product decreases from DD to D2, ठीक है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकता है. तो अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए, मान लो कि मैं पनीर लेके आई हूँ मार्केट में बेचने के लिए, और मैं कितना लेके आई हूँ 50 kg. अचानक से मैंने देखा कि मेरा पनीर का डिमांड है सिर्फ 30 kg का, तो 20 kg मेरे पास बच गया. उस सिचुएशन में हम प्राइस को क्या करेगा, हम प्राइस कम करेगा ताकि मैं एडिशनल जो मेरे पास पनीर बचा हुआ है वो हम बेच पाए. तो अगर मेरा डिमांड डिक्रीज करता है तो सप्लाई हम डिक्रीज नहीं कर पाएगा, और तब हम क्या करेगा, माई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल reduce to P2. ठीक है, एंड क्वांटिटी रिमेनिंग फिक्स्ड. क्वांटिटी को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों का प्राइस चेंज होगा. सो हाउ प्राइस एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड अंडर पेरिशेबल कमोडिटीज विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व. The demand and supply curve, both the curve are intersecting at a point, and that particular point price is being determined. Clear? But quantity remaining fixed. Now ड्यूरेबल कमोडिटीज. अब देखो, ड्यूरेबल कमोडिटीज जो होता है वो हम लोगों को पता है कि हम लोग उसको थोड़ा दिन तक एटलीस्ट स्टोर करके रख सकते हैं. तो पोटैटो पर केजी पोटैटो का प्राइस अगर 20 रुपीज हुआ और कोई अगर मुझे आके बोलता है कि 15 में दे दो, तो मैं कितने में खरीद के लाई हूँ 20 में, और मेरे को कौन बोल रहा है कि 15 में देने के लिए, तो मैं दूंगी क्या, कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 20, तो मैं उससे नीचे तो बेच नहीं पाऊंगी. और मैं क्यों नहीं बेचूंगी, मैं इसीलिए नहीं बेचूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पोटैटो को हम थोड़ा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं. तो इसीलिए ये जो सप्लाई कर्व है वो इस पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, एंड इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एज दिस इज द सप्लाई कर्व. कि प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरा सप्लाई भी इंक्रीज होगा. लेकिन मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन तक पोटैटो को स्टोर करके नहीं रख सकती, तो आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट माई सप्लाई विल बी फिक्स्ड. मैं इसके साथ प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी. तो ये जो 20 रुपीज के नीचे मैं बेचूंगी नहीं, दिस 20 इज दिस पर्टिकुलर प्राइस. क्लियर? तो इसके नीचे मेरा सप्लाई 0 है. कोई मेरे को बोले कि 20 के नीचे मुझे बेचना है, तो हम कभी नहीं बेचेगा. तो 20 के नीचे अगर प्राइस हुआ तो माई सप्लाई विल बिकम 0. सो व्हेन माई सप्लाई विल स्टार्ट, व्हेन ए particular consumer will give me 20 rupees, at that point only my supply will start. But as my price will increase, my supply will also increase. But after a certain point, I know that I cannot store potato for indefinite time period. So after a certain point, my supply will become fixed. So this is my supply curve. Now suppose if this is the demand, then this is the equilibrium point and my price will be this. If demand of the product increases, quantity भी increase होगा, price भी increase होगा. Demand और ज़्यादा increase हो, quantity price भी increase होगा, supply भी increase होगा. Suppose at this point
डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है, तो उस पॉइंट पे भी प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्वांटिटी मतलब जो मैं बेच रही हूँ वो क्वांटिटी में पोटैटो मैंने स्टोर करके अंदर रख दिया, तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होता जाएगा मैं प्राइस भी इंक्रीज करूंगी, मेरा सप्लाई स्टॉक से मैं सप्लाई लेके आऊंगी और सप्लाई इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बट वंस दिस पर्टिकुलर पॉइंट रीचेस दिस वन, उसके बाद अगर मेरा डिमांड इंक्रीज हो तो मेरा प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास स्टॉक में कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट मैं अपने पास रख नहीं सकती। तो उसके बाद अगर डिमांड इंक्रीज हो तब मेरा प्राइस इंक्रीज होगा, बट माई सप्लाई विल रिमेन fixed. So this is how price and output are determined with the in case of durable commodities under perfect competition. So what we have seen is that very short period or market period has two different types of commodities, perishable and the other one is durable. And what is very short time period? Very short time period is a market period where with the changing demand condition we cannot change the supply. So as there are two different types of commodities, accordingly there are two different figures with the help of which we can show how price and output are determined under perfect competition, of course. Now under perishable commodities, since it is the case of that particular commodity which easily gets destroyed, that is why the supply curve remains fixed. So if the supply curve remains fixed, then the supply is a vertical straight line parallel to y-axis, and with the changing demand condition your supply will remain fixed but price will change accordingly with the changing demand condition, ठीक है। डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो गया तो प्राइस कमेगा, एंड दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज। बट इफ द कमोडिटी इज अ ड्यूरेबल वन, वी नो दैट we can store for a certain time period the commodities that are durable. So कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे अगर तुमको कोई प्राइस बोले तो तुम कभी सप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमको पता है कि तुम उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो योर सप्लाई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी देयर, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, तो वहां से तुम्हारा सप्लाई इट विल बी एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। बट सिंस दिस इज द केस ऑफ पोटैटो दैट इज ड्यूरेबल कमोडिटीज, सो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड वी कैन स्टोर ऑफ कोर्स, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड you cannot store potato, you cannot have potatoes in your stock. उसके बाद वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर a certain time period it will become वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लाइक दैट ऑफ पेरिशेबल। पेरिशेबल जो इजीली खराब हो जाता है, इसीलिए एकदम स्टार्टिंग से वो हॉराइजन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसको हम थोड़ा देर तक स्टोर करके रख सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी वर्टिकल बन जाएगा। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड what the price and output will be. तो इनिशियली जब तुम्हारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, तब तुम्हारा डिमांड अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा प्राइस भी बढ़ेगा और तुम स्टॉक से अपना सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन तुमको भी पता है इतना तुम्हारा स्टॉक है, ठीक है, उसके बाद तुम उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो उस जो तुम्हारा स्टॉक फाइनल में है उसके बाद अगर डिमांड इंक्रीज करता है तब तुम्हारा प्राइस कमोडिटी का बढ़ेगा, बट योर आउटपुट विल रिमेन फिक्स्ड. So this is how price and output are determined in case of durable commodities. So this is how price and output are determined under very short time period, that is market period. So since there are two different commodities, you have to explain with two different figures. So keep this in mind, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। समझ अगर नहीं आता है तो पूछ लेना। थैंक यू।